Yeah, hi. Good evening, everyone. Yes, Prachi and everyone else, can you quickly show me a thumbs up if I'm audible? Yes, great. So, guys, as you know that this is a strategy session, particularly for those who have just started that CAT preparation, and if you are worried about the plan, that how can you complete your syllabus from Feb to November, or you can say October, because November will be the month where you will be mostly writing your mock test and all. So, what should be your plan? What should be your strategy? How should you approach different subjects? What are the exams to target? So which books to use, what sessions to attend, everything will be told to you during this session. So are you all ready? Yes. Okay, so let me quickly share the PPT with you so that we can get going. Yeah, and in the meantime, if you can just type your educational background in the chat box, that would be really helpful. So please type your educational background. Tell me a bit about yourself. Just maybe you can type your educational background and which city are you from, which year are you in currently. So Shib is from BA English, pursuing BA English. Okay. What about others? Uh-huh. Okay, great. Okay, guys, so let me just share this with you. Right. Fine. Yeah, we have Shubham Jindal is pursuing BBA second year, New Delhi. Right. Then a few more. Prachi is BA Economic Honors. Ishan. Hi, Ishan. Good evening. You are already my student, Ishan. Okay. Hi, Rohit, Bhavya, Kiran, and everyone else. Great. Okay, so guys, get ready for an amazing interactive session. Okay, so let's understand everything. What are the exams? When do they happen? Which exam should you target? How many good colleges are there under those exams, and so on and so forth. So I'll tell you everything about that. But just before that, I mean, in case if you are new to my session, so this is a bit about myself. Once again, my name is Ronak Shah and I have completed my MBA. I'm also an engineer, more than 12 years of training experience for CAT and other MBA entrance exams. In fact, I have trained more than 20,000 students. I have worked almost all top-notch institutes like IMS, CL, Career Forum, Career, PT Education, and so on and so forth. And I also have my own training organization in Pune. So I'm from Pune basically. And I also have 5 years of industry experience where I have worked with organization like Siemens and Satyam Computers. Satyam became Mahindra Satyam now. I personally appeared for CAT many times, and yes, I'm also a digital marketer. So I teach this subjects Quant, DI, LR for CAT and all the other MBA entrance exams, and I also help students for interview and college selection. So let me quickly tell you that this is the channel, a YouTube channel where I conduct session apart from conducting on an Academy Learning app. So if you just go to this channel, you will find plenty of my sessions. And recently, I have conducted about 100 interviews of different students who appeared for various interviews or who were preparing for various college interviews, right? So if you want to stay connected with me, you can be part of my Telegram group. It's by the name Unacademy_Ronak Shah. And if you have any query, so you can ping me on my Telegram ID, which is Ronak_live. This is my ID and this is my group ID, Telegram. Okay. So let me quickly post my Telegram group link. So in case if you're not part of that, you can just use this link and you can join. So मैंने chat box में ये group का link pin किया हुआ है, तो आप उसको use करके भी join कर सकते हो. Hi Hina, good evening. Everyone else. So all those who have just joined, guys, please type your educational background in the chat box. आप अभी क्या करते हो? Please type it in the chat box. Hi Vishal. अरे विशाल, आप तो मतलब अटेंड कर ही रहे हो मेरे सेशंस. Hi Mohit. So come on guys, all those who have just joined, please type your educational background in the chat box. So Lokesh is pursuing BSc Physics from DU. Completed or pursuing, Lokesh? Just type the year also from over there. Okay. And guys, in case if you are planning to go for plus, which is highly recommendable,
So you can use my code SHAH10. Yeah, hi Shreyansh, mechanical engineer, completed or pursuing? नहीं विशाल, ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली फॉर नॉन इंजीनियर्स, ऑफ कोर्स इंजीनियर्स वुड आल्सो बी बेनिफिटेड. तो नॉन इंजीनियर्स को मैं एक पर्टिकुलरली एडिशनल इनपुट दूंगा कि हाउ कैन दे इंप्रूव देयर मैथमेटिक्स, बिकॉज फॉर मेनी नॉन इंजीनियर्स देयर चैलेंज एरिया इज मैथमेटिक्स, राइट. और मैथमेटिक्स अगर वीक है तो एलआरडीआई में परफॉर्मेंस वीक चला जाता है. सो आई एम गोइंग टू गिव देम दैट स्पेसिफिक इनपुट अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग एवरीथिंग एल्स, कि कौन से एग्जाम है, उसका मोड क्या है, और उसमें कितने कॉलेजेस आते हैं. तो काफी सारे और पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले, which would be useful for everyone. Okay, fine. So guys, you know about plus subscription of Unacademy since you are on Unacademy app. So once again, apply this code and get maximum discount. It is SHAH10. And this is going to get over in some days. So please hurry up and take your subscription in this week itself. Right? In fact, if you are taking any other subscription also like Bank PO or UPSC or any other, you can still use my code SHAH10 to avail that discount and to get guidance from me. Now, let me clearly tell you what is the agenda for this session, so you'll understand that. So we'll quickly understand the exam calendar for the year 2021 and 22. सी कैट आपका नवंबर में होता है, लेकिन आपके एग्जाम्स जो है वो मार्च तक चलते रहते हैं. जैसे स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स आर लास्ट वन टू कम इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. दे कंडक्ट द स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल. So that's why I'm saying the calendar will be 2021-22. So we'll understand that. We'll understand paper pattern of CAT exam. Then getting started. So engineers को कैसे शुरू करना चाहिए, non engineers को कैसे शुरू करना चाहिए, we'll discuss that also. Identify the exams to target. So guys, within 1 month's time, that is by March, you should be pretty clear कि आप कौन से 5 या 6 एग्जाम को टारगेट करने वाले हो. I mean, there's no point in writing about 10-12 exams. So I'll show you the list of exams, and they are actually more than 13 exams. Okay, तो इतने सारे हम लिख नहीं सकते. So we need to ideally focus target 5 exams at the most. I'm saying. तो आप 3-4 भी कर सकते हो. 5 is also fine. 6, 7, 8 is not required honestly. Weekly schedule आपका क्या होना चाहिए, revision कैसे करना चाहिए. So everything will be discussed. What are the CAT subjects and what are the topics? What is the syllabus? So we'll discuss that also. This is nothing but syllabus. Okay, then which books to refer? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा. Mock test plan आपका क्या होना चाहिए? Should you start your mock test from this point of time, और जून और अगस्त कब से शुरू करना चाहिए? So I'll tell you about that also, and some other important topics which no one will tell you honestly. सब लोग इसकी बात कर रहे हैं, बट इसकी कोई बात नहीं कर रहा है. So this is what we are going to discuss. Newspaper, how important they are, pursuing your hobbies and your graduation studies, focusing on graduation studies and maintaining good grades in that. So उसका भी plan साथ में करना जरूरी है. Okay, so let's get going everyone. So just to quickly brief you about the calendar. Okay, अब मैं 2020-21 का calendar यहाँ पे बता देता हूँ. In fact, let's go ahead with 21-22 only, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से कैलेंडर थोड़ा सा स्क्यूड था, बट अदरवाइज नॉर्मल कैलेंडर क्या रहता है. सो कैट इज नॉर्मली कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर, स्नैप इन दिसंबर. ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो उसका जो MHCET, दिस इज नथिंग बट अ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम. जैसे अगर आप तमिलनाडु में हो तो 10 सेट होता है, राजस्थान में 8 सेट होता है, गुजरात में G सेट होता है. तो ये सारे नॉर्मली मार्च अप्रैल पीरियड में आते हैं, आप ऐसे कह सकते हो. सीमेट जैन में आता है, इस बार वो फेब मार्च में चला गया है. एनमेट जो है ये एक एग्जाम है जो विंडो पीरियड में होता है, अक्टूबर से लेके नॉर्मली दिसंबर के विंडो पीरियड में होता है. यू नो, जैसे अगेन दिस ईयर दे हैड एक्सटेंडेड द विंडो पीरियड टिल फेब, मतलब अभी तक चल रहा था, इनफैक्ट दिसंबर जैन एंड तक चल रहा था, बट नॉर्मली वो अक्टूबर से दिसंबर के विंडो पीरियड में होता है. एंड यू कैन बुक योर डेट, you get an opportunity to book your date in for NMET exam and you can take multiple attempts. ओके, सो ये हो गया. हम वापस आते हैं उसके ऊपर. जेड की बात करें, नॉर्मली जैन में होता है. IFT 2019 में दिसंबर में हुआ था, इस बार जैन में हुआ. ठीक है, टिसनेट नॉर्मली जैन में होता है, इस बार फेब में हो रहा है. IB सेट अगेन दिसंबर जैन पीरियड में होता है. एंड मैट एटमा, ये बहुत ही फालतू एग्जाम है. अगर आपका कहीं पे कुछ दाल नहीं गलता है तो फिर आप मैट एटमा एग्जाम के लिए जाते हो, बट दिस आर एक्चुअली very faltu exam. You will not see
एनी गुड कॉलेज एक्सेप्टिंग मैट और एटमा स्कोर, ठीक है ना। तो मतलब इंडिया में अगर हम देखने गए तो 4000 से भी ज्यादा कॉलेजेस है एमबीए या पीजीडीएम के। हाय धनुष, एमबीए या पीजीडीएम के। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि गाइस एमबीए और पीजीडीएम में डिफरेंस क्या है, विच इज बेटर, शुड यू गो फॉर एमबीए और शुड यू गो फॉर पीजीडीएम, क्या है। लेट मी टेल यू गाइस, इट डजंट मैटर वेदर यू परस्यू एमबीए और पीजीडीएम अनलेस यू हैव प्लान्स टू गो फॉर पीएचडी। अगर आपको पीएचडी करके प्रोफेसर या ऐसा कुछ करना है, रिसर्च स्कॉलर बनना है, तो आपको मास्टर डिग्री लगेगा, यू विल हैव टू गो फॉर एमबीए। अदरवाइज what matters the most is the rank of the college rather than the degree or the certificate that they provide. तो सवाल ये उठता है कि क्यों कुछ कॉलेज एमबीए प्रोवाइड करते हैं, कुछ कॉलेज पीजीडीएम प्रोवाइड करते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एमबीए कॉलेज एंड पीजीडीएम कॉलेज गाइस? क्यों कुछ कॉलेज एमबीए प्रोवाइड करते हैं और कुछ कॉलेज पीजीडीएम प्रोवाइड करते हैं? जल्दी से मुझे बताओगे? टाइप इट इन द चैट बॉक्स, कम ऑन क्विकली, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या आप सोचते हो। एवरीवन प्लीज फील फ्री, आप गलत भी लिखोगे दैट्स फाइन। सो कम ऑन क्विकली टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड पीजीडीएम। क्या मुझे एमबीए के लिए जाना चाहिए, पीजीडीएम के लिए जाना चाहिए? ओके उनकी मर्जी है सर। मतलब विशाल कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तुम्हें? अच्छा ठीक है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा, एज लॉन्ग एज यू आर कंसिडरिंग द रैंक्स ऑफ द कॉलेज। और कोई व्यू? ठीक है, और कोई व्यू? तो चलो मैं आपको बता देता हूं गाइस, रीजन ये है, देखो जैसे अभी आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीकॉम, बीबीए, बीए, बीई जो भी कर रहे हो, इट्स अ बैचलर डिग्री। आप जो भी XYZ कॉलेज से कर रहे हो, क्या डिग्री वो कॉलेज प्रोवाइड करता है? नहीं, डिग्री कौन प्रोवाइड करता है? यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो अगर कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी में आता है या यूनिवर्सिटी के साथ में अफिलिएटेड है, तभी वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को डिग्री मिलता है, राइट। तो जैसे अगर मैं सपोज एक कॉलेज ले लूं से जमनालाल बजाज, JBIMS, अगर मैं जमनालाल बजाज ले लूं, इट इज पार्ट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, और मुंबई यूनिवर्सिटी में एमबीए को MMS कहते हैं। अब इसमें कोई फर्क नहीं है गाइस, अल्टीमेटली इट्स अ मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो अगर कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी में आता है तभी स्टूडेंट्स को डिग्री मिलता है, मास्टर का डिग्री मिलता है। बट अगर मैंने अपने कॉलेज को कोई यूनिवर्सिटी में अफिलिएट कर लिया, सपोज मैं एक कॉलेज चलाता हूं, मैंने कॉलेज को यूनिवर्सिटी के साथ में अफिलिएट कर लिया, तो आई हैव टू फॉलो द आउटडेटेड करिकुलम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, which I don't want to do. I'll have to just charge the fees that university is saying me to charge. तो मुझे वो भी constraint नहीं चाहिए। तो what I'll do is I'll not affiliate my college to any university, but instead with the approval of AICTE, I'll start a private management program, जिसमें मैं डिग्री तो नहीं दे सकता, बट मैं पीजीडीएम सर्टिफिकेट दूंगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को पीजीडीएम सर्टिफिकेट दूंगा। सो दिस इज द डिफरेंस। जो पीजीडीएम कॉलेजेस होते हैं, दे आर लाइक ऑटोनोमस कॉलेजेस, वो अपना फीस खुद से डिसाइड करते हैं, अपना करिकुलम खुद से डिसाइड करते हैं, एंड दे आर गवर्न्ड बाय दिस AICTE बॉडी, राइट। और एमबीए के कॉलेज है, दे आर पार्ट ऑफ सम यूनिवर्सिटीज, दे नीड टू फॉलो देयर करिकुलम, एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉलो आउटडेटेड करिकुलम। तो आपको यहाँ पे करिकुलम थोड़ा आउटडेटेड देखने को मिलेगा, यहाँ पे एडवांस होगा, लेकिन फीस इनकी कम होगी, इनकी फीस ज्यादा होगी। सो दिस आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। गाइस अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको 60th रैंक का कॉलेज मिल रहा है, 60th रैंक का कॉलेज है इंडिया में कोई, ठीक है, जिसमें एमबीए का डिग्री मिल रहा है, इट इज पार्ट ऑफ से सम गुजरात यूनिवर्सिटी, ओके। उसमें एवरेज पैकेज जाता है 6 लाख के आसपास, और इसकी फीस है सपोज 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ओके। दूसरा आपको पीजीडीएम का कॉलेज मिल रहा है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टाइप, जिसमें फीस है आई एम नॉट श्योर अबाउट गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट फीस, सपोज 14 lakhs, ओके, जस्ट अंदाजा दे रहा हूं मैं आपको, बट एवरेज पैकेज है उधर अराउंड 10 lakhs। और यहाँ पे आपको पीजीडीएम मिल रहा है, जिम आपको पीजीडीएम सर्टिफिकेट देता है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ओके। तो आप किस में जाओगे? ये गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाओगे या आप ये 60th रैंक वाले कॉलेज में जाओगे? गाइस किस में जाओगे? प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स। डेफिनेटली आपको जिम में जाना चाहिए गाइस, आपको जिम में जाना चाहिए, क्योंकि ये 10 लाख रुपए जो आपको सैलरी मिल रही है, यहाँ पे 6 लाख रुपए मिल रही है। दिस इज अ ह्यूज गैप। ये जो फीस है 14 लाख और 4 लाख, ये वन टाइम है, जबकि सैलरी इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस,
राइट? अगर आप 10 लाख से शुरू कर रहे हो तो आपका जल्दी से 12, 14, 16, 20 हो जाएगा, लेकिन अगर आप 6 लाख से कर रहे हो तो 20 लाख जाते जाते ऑलमोस्ट एक डिकेड निकल जाएगा आपका। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, बॉडी बनाएंगे जाके जिम में। अरे विशाल, दिस इज नॉट द टाइम फॉर पीजे माय डियर, देयर आर सीरियस स्टूडेंट्स, ओके? Fine. So guys, please try to understand, do not make your decision based on degree or diploma certificate that you are getting, but look at the rank of the college. Is that clear? I'm sure all of you would be very clear about the ranking and all. Right? तो चलो, coming back to the main point, क्या हमें देखना था एग्जाम का कैलेंडर, राइट? तो एग्जाम के कैलेंडर मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाया कि कौन से एग्जाम कब आ रहे हैं। तो वापस चले जाते हैं, कैट, स्नैप, सीईटी, सीमैट, एनमैट एंड जैट, एंड फिर उसके अलावा एग्जाम्स तो और भी काफी सारे, टिस है, माइका है, इरमा है, एंड सो एंड सो फोर्थ। बट गाइस, इतने सारे एग्जाम्स आप नहीं लिख सकते, यू विल हैव टू, या आईएफटी है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर आपको फॉरेन ट्रेड में इंटरेस्ट है एंड यू नो इफ यू आर वेरी कीन अबाउट दैट, ओनली देन यू कैन राइट एग्जाम लाइक आईएफटी, राइट? सेम वे अगर आपको एचआर में इंटरेस्ट है, एचआर एंड लेबर रिलेशन में इंटरेस्ट है, ओनली देन यू कैन ट्राई फॉर कॉलेज लाइक टिस। डोंट जस्ट लुक एट कि अच्छा ये टॉप रैंक का कॉलेज है, मैं अप्लाई कर देता हूँ, चाहे मुझे क्या है, किसमें इंटरेस्ट है कुछ नहीं पता है, मैंने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ना मुझे मार्केटिंग पता है, ना मुझे एचआर पता है, बट मैंने कर दिया अप्लाई टिस में। तो ट्रस्ट मी, आप शायद बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, आप एग्जाम निकाल दोगे, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे एंड अल्टीमेटली आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सो प्लीज बी एक्सट्रीमली कॉशियस while deciding which colleges or which exams to appear and which colleges to target, right? कौन कंडक्ट करता है? तो कैट आपको पता है, आईएम जो है वो कैट कंडक्ट करता है, सिम्बायोसिस जो है वो स्नैप कंडक्ट करता है, फिर स्टेट लेवल बॉडी सीईटी एग्जाम कंडक्ट करते हैं। सीमैट कौन कंडक्ट करता है? सो गाइस, वैसे तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, बट इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय एआईसीटी, द सेम बॉडी व्हिच यू नो मैनेजेस द पीजीडीएम कॉलेज। एनमैट कौन कंडक्ट करता है? एनएमआईएमएस। फिर जैट कौन कंडक्ट करता है? एक्सएलआरआई, बहुत ही अच्छा कॉलेज है एक्सएलआरआई। आईएफटी कौन कंडक्ट करता है? आईएफटी करके ये कॉलेज है। टिसनेट, टिस कंडक्ट करता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई। आईबीएस करके हैदराबाद का कॉलेज है, तो वो आईबी सेट कंडक्ट करता है, एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम है गाइस? सबसे इंपॉर्टेंट है कैट एग्जाम। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? लुक एट दिस कॉलम, नंबर ऑफ गुड कॉलेजेस एक्सेप्टिंग कैट स्कोर, इट इज 50+, जिसमें से 20 तो आईएम्स आ गए, नेक्स्ट ईयर शायद कुछ और नए आईएम ऐड हो सकते हैं, बट अभी की डेट पे अगर हम देखते हैं, सो देयर आर 20 IIMs, and apart from that, जिम हो गया, केजे सोमैया हो गया, IIM, टापमी, वेलिंकर, and there are so many other colleges, so many IITs and NITs and all. तो ये काफी सारे कॉलेज कैट का स्कोर लेते हैं, so that's why CAT becomes very very important exam. एक एग्जाम और आपके ऑलमोस्ट 50+ अच्छे कॉलेज के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। फिर स्नैप, सिम्बायोसिस को क्यों हम इतना वेटेज देते हैं? क्योंकि सिम्बायोसिस के अंदर देयर आर 16 कॉलेजेस एंड सिम्बायोसिस एक इंटरनेशनली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, तो उसके सारे 16 कॉलेज तो अच्छे नहीं है, बट मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें से कम 4 से 5 अच्छे कॉलेज है। तो नंबर ऑफ गुड कॉलेज मुझे यहाँ पे लिखना है, तो आई विल राइट अबाउट 4 कॉलेजेस, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स गुड। अगर मैं स्टेट लेवल एग्जाम सीईटी की बात करूं तो उसमें भी 3 से 4 अच्छे कॉलेज है। अगर मैं सीमैट की बात करूं तो गाइज अभी सीमैट सपोज अराउंड 10 गुड कॉलेजेस एक्सेप्ट सीमैट का स्कोर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, 10 गुड कॉलेजेस एक्सेप्ट सीमैट का स्कोर, बट ये सारे कॉलेज ऐसे हैं जो साथ में कैट या जैट का स्कोर लेते ही लेते हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल कॉलेज इन द कंट्री व्हिच गिव्स यू एडमिशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सीमैट। जो भी कॉलेज आप जाओ वेबसाइट पे, जिम की या केजे सोमैया की या आईएमटी नागपुर की, आप उसकी वेबसाइट पे देखोगे दे एक्सेप्ट दिस थिंग, कैट, जैट, सीमैट, ऐसा ही लिखा होगा। सो एक्चुअली इसका मतलब क्या बना? अगर मेरा कैट का स्कोर 90+ आ जाता है ना, आई रियली डोंट नीड टू राइट सीमैट एग्जाम, मुझे सीमैट एग्जाम लिखने की जरूरत ही नहीं है अगर मेरा कैट का स्कोर 90+ आ गया। सो दिस इज वेयर योर स्ट्रेटेजी कम्स इन द पिक्चर। आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, और यहां पे ही मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। जैसे मैंने एक आपको सिंपल सा पॉइंट बताया कि अगर आप 90+ कैट में ला रहे हो, सीमैट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Are we clear about this, guys? Come on, quickly show me a thumbs up before we go to the next part. Great. चलो तो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये थोड़ा सा बता दिया। Z की अगर बात करें, so about 8 to 10 good colleges accept Z score. XLRI exclusively Z का स्कोर लेते हैं, बाकी सारे जो कॉलेज है वो साथ में कैट
या सीमेट का स्कोर लेते ही लेते हैं। तो वंस अगेन मैं एक्चुअली जैट किसके लिए लिख रहा हूं, सिर्फ एक कॉलेज एक्सएलआरआई के लिए लिख रहा हूं ऑफ कोर्स, पर वो एक्सएलआरआई इतना अच्छा कॉलेज है पर्टिकुलरली फॉर एचआर, ठीक है, तो आप उसके लिए एक एग्जाम लिख सकते हो इफ यू आर वेरी कीन ऑन एचआर, इवन फॉर जनरल मैनेजमेंट आल्सो इफ यू कैन क्रैक दैट, तो आप एक्सएलआरआई में जा सकते हो डेफिनेटली, राइट। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम वगैरह समझ लिया, अब बारी आती है कैट का पेपर पैटर्न समझने की एवरीवन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैट पेपर पैटर्न। हम 2019 से शुरू करते हैं, 2019 एंड 20 का पेपर पैटर्न समझते हैं। तो 3 सेक्शन होते हैं, बराबर का टाइम मिलता है आपको, जैसे 2019 में 60 मिनट्स था, टोटल 3 आवर का पेपर था आपका, ठीक है। 32 क्वेश्चंस थे 2019 में, एंड वंस अगेन लेट मी टेल यू 2021 में दिस विल बी द पेपर पैटर्न गाइस, दिस विल बी द पेपर पैटर्न। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ कोविड इस साल उन्होंने पेपर छोटे कर दिए थे सो दैट दे कैन सैनिटाइज द फैसिलिटी एंड दे कैन कीप सफिशिएंट गैप बिटवीन 2 स्लॉट्स, राइट। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार वो वापस छोटा पेपर करके जाएंगे। इट विल बी 2015 से ये सेम पेपर पैटर्न है, 15 16 17 18 19, तो 2021 में दे वंस अगेन दे आर एक्सपेक्टेड टू गो विद दिस पेपर पैटर्न। उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन एंड टीटा क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब आप समझते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और एमसीक्यू क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम होता है +3 -1। दूसरे होते हैं टीटा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के नीचे आपको एक बॉक्स दिया जाता है और एक नंबर पैड दिया जाता है, एंड यू नीड टू इनपुट द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द आंसर ऑप्शन। आपको कुछ लिखना नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करना है। तो आंसर कैसे आएंगे, 12, 50 या फिर एट द मोस्ट 50.5, ऐसे डेसिमल तक आंसर आ सकते हैं, और उसके अलावा कुछ और ज्यादा नहीं होता है उसमें। ओके, सो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो टीटा क्वेश्चन अगर आप देखोगे अराउंड 25% क्वेश्चन टीटा क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये 10 + 8 18 + 7 25 आउट ऑफ 100 टोटल क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज हाउ द पेपर पैटर्न गोज। अगर टफनेस की मैं बात करूं तो कौन सेक्शन 10 के इंडेक्स पे कौन सेक्शन का टफनेस हम मेजर कर सकते हैं, अराउंड 8। ओके, वर्बल की बात करो तो 7.5 है, लेकिन डीआईएलआर की बात करो, नाउ दिस इज द टफेस्ट सेक्शन ऑफ कैट। डीआईएलआर को क्रैक करना ज्यादातर स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट, क्योंकि मैथ्स के अंदर फॉर्मूले है, आप कर सकते हो, लेकिन डीआईएलआर सेक्शन इतना जल्दी क्लियर नहीं होता है, उसमें कोई भी नया केसलेट आ सकता है नहीं। सो सिद्धार्थ, वी आर डिस्कसिंग दिस कैट 2020 नाउ। Can you share syllabus of all the section? Yes, Anshu, I'm going to share the syllabus of all the section. And one more thing, guys, after the session, just by using this link, आप लिंक पे आओगे, सेशन खत्म हो गया, यही लिंक पे वापस आना, और आप पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सो यू कैन डाउनलोड दिस कंप्लीट पीडीएफ, जो मेरी ये पीपीटी है ना, वो ऐसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो विथ माई एनोटेशंस। इज इट क्लियर? बट गाइज मैं एक चीज बताता हूं, मैंने ग्रुप में टेलीग्राम, मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, सो व्हाई डोंट यू क्विकली ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप सो दैट यू कैन स्टे इन टच विद मी एंड आई कैन ऑल्सो पोस्ट इट ऑन ग्रुप, ठीक है। काफी सारे हम स्टडी मटेरियल और वो सारा पोस्ट करते रहते हैं उधर। यस, चलो, सो गाइज नाउ टॉकिंग अबाउट 2020 पेपर पैटर्न, ओके, 2020 पेपर पैटर्न, सॉरी। सो रिसेंट था तो थोड़ा फ्रेश लुक दिया है। टोटल क्वेश्चन 76 थे, जिसमें से 19 क्वेश्चन टीटा थे, 19 क्वेश्चंस वर टीटा। वंस अगेन इट कम्स आउट टू बी 25%, 1/4 25% हुआ ना। लेवल ऑफ डिफिकल्टी ओवरऑल मॉडरेट था, कुछ लोग कुछ भी कहे कि बहुत टफ था, बहुत इजी था, डोंट गो बाय दैट, क्योंकि हर एक का अपना परसेप्शन होता है, हर एक की अपनी प्रिपरेशन होती है। ओवरऑल आप उसको बिल्कुल वैसा ही पेपर कहोगे जैसा 2019 का था, सिर्फ टाइम कम था और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, ठीक है। वर्बल सेक्शन की बात करें 40 मिनट्स 26 क्वेश्चन, एलआरडीआई 40 मिनट्स 24 क्वेश्चन, दिस वाज सेक्शन नंबर 2 एंड दिस वाज सेक्शन नंबर 3, एंड क्वांट 40 मिनट्स 26 क्वेश्चन। Once again, the level of difficulty or LRDA section was from moderate to tough. मतलब on a scale of 10, you can say about 8.5 to 9, right? So this was CAT 2020 paper pattern. Okay. Now, once again, guys, before we go ahead, so if you are preparing for CAT 2020, definitely you can attend my sessions every day on YouTube as well as on Unacademy Learning app. All the sessions are free. ये सारे मेरे free sessions हैं, ठीक है, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स कराता हूँ, तो उसका सवाल नहीं है। बट फिर भी आप मेरे प्लस बैचेस के लिए जा सकते हो SHAR10 कोड यूज करके। अब प्लस में आपको क्या मिलता है, ये आपको ये सेशन के एंड में भी पता चल जाएगा कि कितना गाइडेंस इंपॉर्टेंट है।
बट मैं जस्ट एक चीज बता देता हूं कि व्हेन यू गो फॉर प्लस यू गेट माय पर्सनल गाइडेंस, दैट्स वन थिंग. You get test series, you get complete GDPI preparation, and you get other management entrance exam preparation workshops. राइट आप सोचोगे कि सर आप इतने सारे YouTube पे फ्री सेशन कंडक्ट कर रहे हो, लर्निंग ऐप पे फ्री सेशन कंडक्ट कर रहे हो, तो भैया हम प्लस में क्यों जाए? तो गाइस प्लस में एक तो सबसे बड़ा चीज है कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है. बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज, जो भी आपको लगता है आप उसका बैच ज्वाइन कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि भाई मेरा ही बैच ज्वाइन करो, और 50 फैकल्टी के बैचेस चलते हैं, आप उनमें से कोई भी बैच ले सकते हो. दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज पूरा मिल जाता है, जिसके लिए आप बाहर कम से कम 7 से 8 हजार रुपए स्पेंड करते हो. गुड टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज होते हैं, काफी अच्छे होते हैं. जीडीपीआई की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल गई. ठीक है, ओके. बाबा द ट्रैवलर, ओके. जीरो इन ऑल द सेक्शंस. ओ बाबा, तो मेहनत करो मेरे दोस्त, तो जीरो से हीरो बन जाओगे यार. दैट्स द ओनली थिंग ना, हार्डवर्क मेक्स यू हीरो यार. कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं है ना, मैं आके कोई जादू की झप्पी देने वाला हूं तुम्हें. चलो एनीवेज, तो गाइज अभी बात करते हैं हमने अब तक क्या क्या समझा कि कितने अलग अलग एग्जाम्स है, एमबीए पीजीडीएम में डिफरेंस क्या है, एंड कौन से एग्जाम्स आपको टारगेट करने चाहिए. तो अभी हमने पेपर पैटर्न भी समझ लिया कैट का 2019 एंड 20 का. ओके, अब हमें समझना है कि शुरू कैसे करें. तो अभी हम पकड़ लेते हैं फेब मंथ, और मैं आपको प्लान बताने वाला हूं फेब से लेके पूरा नवंबर तक का. दोस्तों आइडियली जब आप कैट की प्रिपरेशन करते हो, एक चीज ध्यान में रख लो, कैट की प्रिपरेशन करते हो आपकी बाकी सारे ऑलमोस्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो गई, मतलब अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो जाती है. अब जैसे जैट है, जैट के अंदर एक एरिया आता है डिसीजन मेकिंग. तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एक 15-20 दिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल देने हैं, थोड़े और पेपर्स लिख दो जैट के, और कुछ और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एंड इट विल बी टेकन केयर. क्योंकि कैट के बाद आपको 2 महीने मिलते हैं जैट के लिए, ऑलमोस्ट 1.5 महीना तो मिलता ही मिलता है. तो उसमें आप डिसीजन मेकिंग जैसा एक टॉपिक आराम से कर सकते हो. या फिर दूसरे अगर मैं कुछ एग्जाम लेता हूं, जैसे सीईटी ले लिया, तो सीईटी के अंदर सपोज विजुअल रीजनिंग आता है जो कैट में आता ही नहीं है, तो वो सारे बहुत ही इजी टॉपिक्स है, आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो. आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी के लिए, तो आपके बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी साथ साथ में हो जाएगी. सर पीजीडीएम का और एमबीए का सिलेबस सेम होता है? नहीं, अलग अलग रहता है ही ना. मैंने जैसे बताया कि एमबीए यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करता है. जैसे मैं अगर पुणे यूनिवर्सिटी का एक एमबीए का कॉलेज ले लेता हूँ, मतलब ऐसा सिलेबस होता है ना, मतलब आज भी थियोरिटिकल पेपर रहता है. जबकि अगर आप पीजीडीएम कॉलेज के अगर एग्जाम देखोगे तो बहुत ही पहले तो ज्यादा वेटेज होगा एक्टिविटीज का, क्लास पार्टिसिपेशन का, और ये सब कंपोनेंट के वेटेज होंगे. और जो उनका एक्चुअल फाइनल एग्जाम पेपर भी होगा, उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वो एक चीज हो गई, राइट. सो गाइस शुरू कैसे करें, इंजीनियर एंड नॉन इंजीनियर. अब ये हम अच्छे से समझ लेते हैं. अगर आप नॉन इंजीनियर हो दोस्तों, पर्टिकुलरली अगर आपने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया था, मैथ्स को अगर आपने 10th के बाद छोड़ दिया था, या इन जनरल आपका मैथ्स वीक है, तो यू डेफिनेटली नीड टू स्पेंड अबाउट 15 to 20 days to revise your brush ups or to revise your basics. You must brush up your basics. तो बेसिक्स आप अच्छे करो. किसके? क्वांट बेसिक. अब ये कैसे करोगे? तो गाइज मैंने कम से कम 20 सेशन का एक पूरा सीरीज रिलीज किया है, एक पूरा सीरीज रिलीज किया है 20 सेशन का. इट इज कंप्लीटली फ्री. लेट मी शेयर दैट विथ यू राइट अवे. आप चाहो तो सिर्फ वो सेशन को देख के भी पूरा अपना बेसिक्स अच्छे से कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं आपके साथ में ये पूरा एक यूट्यूब का ही है, ये पूरा प्लेलिस्ट शेयर कर लेता हूं. ठीक है, उसका नाम ही मैंने रखा है बेसिक्स ऑफ मैथ्स फॉर नॉन इंजीनियर्स. ठीक है, सो आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो. मैंने इसको यहाँ पे पिन किया है. अच्छा, सबने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, टेलीग्राम ग्रुप? शैल आई रिमूव द ग्रुप लिंक एवरीवन? यस, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप लिंक हटा रहा हूं. ठीक है, और ये जो एक प्लेलिस्ट मैंने अभी पिन किया, प्लीज लुक एट दैट. उसमें पूरे बेसिक्स ऑफ मैथ्स के टॉपिक्स है. प्लीज गो थ्रू दैट, इट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू, राइट. मतलब आपको अगर सपोज, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने लिखा 4:1.5, आपको नहीं पता ये कैसे सॉल्व करेंगे. 4 स्क्वायर पता है, 4 क्यूब पता है, बट ये कैसे सॉल्व करेंगे नहीं समझ में आ रहा है. अब एक इंजीनियर को ये सवाल दे दो, आराम से वो बता देगा सर दिस इज नथिंग बट 3/2, मतलब 4:1/2 होल रेज़ टू 3. 1/2 पावर मतलब स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, आंसर दे देगा वो. लेकिन अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये कैट का क्वेश्चन नहीं है,
बट कैट की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि पावर में 1.5 होता क्या है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? या फिर एक सिंपल सा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये log ऑफ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं log ऑफ 32 विद बेस 2, तो ये 5 क्यों लिखते हैं, ऐसा ऐसा 5 क्यों लिखते हैं? ठीक है, तो इसका रीजन है कि 2:5 32 होता है। मतलब इस बेस को अगर मैं इस इंडेक्स पे रेस करूंगा तो ये नंबर मिलता है, तो इसको लॉग फॉर्म में हम लिखते हैं log ऑफ 32 विद बेस 2। देखो बेस तो दोनों में 2 है, इज 5। सो दिस इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स। दिस इज बेसिक बाय द वे। तो आप अगर नॉन इंजीनियर हो तो प्लीज बेसिक पे वर्क करो, राइट? उसके बिना अगर आप ऐसे कोई भी सेशंस अटेंड करना शुरू कर दोगे डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकंड, ट्राई टू टेक गाइडेंस फ्रॉम मी, ठीक है? और इसीलिए ये जो गाइडेंस आपको लगता है उसी के लिए मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं कि आप इसके लिए प्लस के लिए जा सकते हो। सो आप प्लस कोर्स के लिए जा सकते हो। सो यूज माय कोड चार्ट10 एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर प्लस। तो उसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूं कि भाई आपको कौन से टॉपिक कैसे करने चाहिए, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लस ले लिया तो मतलब रात को 12 बजे आपका क्वेश्चन आया तो मैं आपको एड्रेस करूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? दैट विल बी रॉन्ग प्रॉमिस। व्हाट आई एम सेइंग इज आई विल हेल्प यू प्रिपेयर योर प्लान। क्योंकि 20 सेशन भी आप करने बैठोगे आपको ऐसा लगेगा सर ये सेशन की मुझे और प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं कहां से करूं ये प्रैक्टिस? सो दिस इज व्हाट यू गेट। Yeah, thanks Rohit. So you have been attending Rohit, so you know, but just for other students, I mean, I'm just telling them, मैंने share किया, it's a free thing, तो आप कर सकते हो। और गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मेरे गाइडेंस की जरूरत है ही है, आप खुद से भी अगर सेल्फ डिसिप्लिन हो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट? मतलब आपको मटेरियल यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, आप खुद से भी कर सकते हो। लेकिन वही हो जाता है कि खुद से वो ट्रैक रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़े से कॉलेज के एग्जाम आए, असाइनमेंट सबमिशन आए एंड वी गेट डिविएटेड। सो इफ देयर इज अ मेंटर that helps you in being on track. So non engineers को मैं सजेस्ट करूंगा मैथ्स पार्ट चेक कर लो। सेम वे engineers, मैंने देखा है engineers नॉर्मली मैथ्स में अच्छे होते हैं बट उनका इंग्लिश वर्बल उनका वीक होता है। So what should they do? They should start reading a lot. Start reading a lot. अगर आपका वर्बल वीक है, even if you are non engineer and if you have weak verbal, guys, you will have to start reading. How should you start reading? सीधा कोई शेक्सपियर की नॉवेल लेके मत बैठ जाओ, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। जैसे बहुत आपने सुना होगा टूल किट एंड ऑल दिस थिंग्स, सो रीड अबाउट दैट एंड यू विल डेफिनेटली इंप्रूव ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है? सिद्धार्थ, डेफिनेटली रीडिंग इंप्रूव करो अपना। हर रोज आपको कम से कम 45 to 50 मिनट्स प्रॉपर रीडिंग करना पड़ेगा। 45 to 50 मिनट्स रीडिंग करना पड़ेगा जिसका भी वर्बल वीक है, राइट? फिर एक और चीज है कि मॉक टेस्ट लिखो दोस्तों। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड से फ्रॉम 1st of Feb, अंशु, यस, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, द हिंदू, डेक्कन क्रॉनिकल, या फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू पढ़ोगे तो मतलब इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो नहीं होगा। डेफिनेटली हिंदू का इंग्लिश जो है वो थोड़ा बेटर होता है कंपेयर टू टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया इज स्लाइटली अ काइंड ऑफ मसालेदार पेपर, राइट? तो इट यू नो मेंटेन्स योर इंटरेस्ट। जबकि हिंदू में कुछ आर्टिकल आप पढ़ोगे ना तो बहुत ही ड्राई लगेंगे, आपको हैवी लगेंगे। तो जो भी आपको सही लगता है आप उसके लिए जा सकते हो, राइट? सो गाइज एक और चीज, इंडियन एक्सप्रेस, यस एब्सोल्युटली इंडियन एक्सप्रेस इज आल्सो गुड, ठीक है? सो गाइज आप एक मॉक टेस्ट अभी जरूर से लिखना, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट एनी प्रिपरेशन यू मस्ट राइट वन मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट आपको इसलिए लिखना है ताकि आपको पता चले ये एग्जाम है कैसा। यू शुड नॉट बी ड्रिवन बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स कि कैट बहुत टफ है, कैट बहुत इजी है, नहीं। टेक द मॉक टेस्ट बाय योरसेल्फ, ठीक है? 2 घंटे 3 घंटे का जो भी पेपर पैटर्न आपको मिलता है, एक मॉक टेस्ट लिखो एंड अंडरस्टैंड हाउ इज दैट पर्टिकुलर एग्जाम विथ कॉमन सेंस। आप कितना सॉल्व कर पाते हो? आई एम श्योर अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हो तो कैट एग्जाम में जब आप मॉक टेस्ट लिखते हो ना, you will be able to solve at least 1 or 2 question in quant section without any preparation, guys. Trust me. वो ज्योमेट्री का हो सकता है, सिंपल एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और सॉल्व हो गया, या फिर अब तो क्वांट में आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। LRDI में भी आप कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे, और वर्बल में आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दिस इज द एवरेज परफॉर्मेंस, राइट? अगर मैंने इतने भी सॉल्व किए और मैंने गलत बहुत कम किए, मतलब मैंने अटेम्प्ट ही 10 क्वेश्चन किए और 10 में से मेरे 9 क्वेश्चन सही हो गए, क्योंकि 2 घंटे में 10 क्वेश्चन तो कर ही सकता हूं, जो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के थे, या सिंपल लॉजिकल पजल था, या सिंपल एक कॉम्प्रिहेंशन था।
तो मैंने ये कर लिया, अगर मैंने 10 क्वेश्चन कर लिया तो भी मेरे 30 मार्क्स आ गए। देखो 4 और 2 6 और 2 8 भी कर लिए तो भी 8 ले लो, चलो 8 3 जा 24 मार्क्स आपके यहां पे ही आ गए। पता है आपको कैट में अगर आप 24 मार्क्स लाते हो ना, इस बार के हिसाब से अगर आप 24 मार्क्स लाते हो तो आपके परसेंटाइल बन रहे थे समवेयर अराउंड 50+ परसेंटाइल एट 24 मार्क्स गाइस। मतलब जस्ट इमेजिन 50% जनता से आपके मार्क्स अभी ही ऊपर है। द एग्जाम इज एक्चुअली दिस इजी। तो लोगों के मार्क्स इतने कम कहां पे हो जाते हैं पता है? लोग क्या करते हैं एक्चुअल एग्जाम में, प्रिपरेशन इतनी करी, अटेम्प्ट इतना करने जाते हैं, 2 क्वेश्चन उनसे जहां पे सॉल्व होने वाले थे वो करने जाते हैं 8 या 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन करके आएंगे और उसमें से करेक्ट होगा 2 और इनकरेक्ट हो जाएगा 7 और मार्क्स आएगा -1। दिस इज वेयर दे फॉल फ्लैट। उसकी जगह पे अगर वो इज्जत से सिर्फ 2 क्वेश्चन करते, ठीक है, ओ थैंक यू जनक, या थैंक यू, कीप लर्निंग जनक। ओके अगर आप सिर्फ 2 क्वेश्चन करके आते दोस्तों, और यही तो एक्सेप्ट नहीं होता है ना लोगों से, ईगो बीच में आ जाता है कि और मैं क्या कैट में 2 ही क्वेश्चन करके आ जाऊंगा। अरे भाई प्रिपरेशन नहीं किया है तो अभी 2 ही कर लो, पर ये 8-9 क्वेश्चन करने जाओगे तो मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में ये होते हुए देखा है कि 8-9 क्वेश्चन किए, उसमें से 9 क्वेश्चन किए, 2 सही 7 गलत, तो 6 मार्क्स यहां पे मिले, -7 यहां पे हो गए तो -1 मार्क्स आ गए, राइट। फिर क्या होगा, उसकी जगह पे अगर आप सिर्फ 2 क्वेश्चन करके आ जाते 6 मार्क्स ले लेते, कहीं और जगह पे 3 क्वेश्चन कर लिए 9 मार्क्स ले लिए, इंग्लिश में 6 क्वेश्चन कर लिए 18 मार्क्स आ गए, यार आपके वैसे भी 33 मार्क्स आ गए और आपका परसेंटाइल जो है 60-65 परसेंटाइल के आसपास आ जाता, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तो बनता 60-65, मतलब थोड़ा तो ठीक है, काम का कोई नहीं है, ऑफ कोर्स कोई कॉलेज आपको 65 परसेंटाइल पे एडमिशन नहीं देने वाला है, बट 40 परसेंटाइल यार मतलब कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देता है कि नहीं, तो ये मत करना। तो ये चीज आपको अभी से लर्न करनी है कि भाई मैं मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन करूंगा जो मुझे आते हैं, तुक्केबाजी नहीं चलेगी, वाइल्ड गेसेस नहीं चलेगा, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड गेस, राइट। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं श्वेता कि व्हाई आर यू गेटिंग इनटू सच थिंग्स, मतलब टेक कैट फॉर योरसेल्फ, ठीक है, राइट इट बाय योरसेल्फ एंड मेक द इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डिसाइड इट बाय योरसेल्फ इन सिंपल वर्ड्स। ओके चलो, सो गाइज अभी मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियर बता दी है कि आप सबको सबसे पहले नॉन इंजीनियर्स हो तो बेसिक्स ऑफ मैथ से शुरू करो। मैंने सीरीज पूरा एक प्लेलिस्ट आपके साथ में चैट बॉक्स में पिन किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, तो उसको देखो। उसके अलावा आप अगर इंजीनियर हो या फिर जो भी बैकग्राउंड है आपका, लेकिन इंग्लिश वीक है, स्टार्ट रीडिंग, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। आप कितने भी सेशन अटेंड कर लो, समझ में सब आएगा, लेकिन जब आप खुद पढ़ने बैठोगे, इफ यू डू नॉट हैव दैट sufficient reading habit, you will not be able to comprehend passages, as simple as that. Okay, now which exams to target? So prepare a list of colleges based on your interest and profile, ठीक है गाइस। अभी यहां पे भी आपको मेंटर की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये या तो खुद से करो या फिर आप अगर प्लस हो, आपने मेरा कोड यूज करके प्लस लिया है, डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस कि आप कौन सा ले सकते हो। तो वंस अगेन रिमेंबर दिस कोड SHAR10, आपको जरूरत पड़ेगी, राइट। तो मैं आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको सजेस्ट करता हूं कि टारगेट दिस कॉलेजेस एंड दिस एग्जाम, बट अल्टीमेटली आपको 5 एग्जाम से ज्यादा टारगेट नहीं करनी चाहिए। आंख बंद करके IIFT, इरमा, टिस्नेट, माइका, IBSAT, एटमा, मैट, कैट, जैट मत लिखो, कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। आइडेंटिफाई 5 एग्जाम्स दैट यू आर श्योर टू अपीयर, टेक 1 मॉक टेस्ट फॉर ईच ऑफ दिस एग्जाम। अब ये जो 5 एग्जाम आपने, अब ये बहुत ही एक मैं यूजफुल चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। This year I had at least, I mean I have come across about 10 to 12 students, ठीक है, क्योंकि मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यू लिए, उसमें से मतलब मुझे कुछ मिले और मेरे खुद के भी स्टूडेंट्स थे। 10 to 12 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके स्कोर्स बहुत ही स्क्यूड थे, कैट में बहुत ज्यादा, बट दूसरे एग्जाम में स्नैप में बहुत कम, कम से कम 20 परसेंटाइल का गैप था, 20 परसेंटाइल का गैप, या फिर जैट में बहुत ज्यादा, स्नैप में बहुत कम, या वाइस वर्सा, कैट में बहुत कम, स्नैप में बहुत ज्यादा। देयर वाज अ स्टूडेंट कैट में 70 परसेंटाइल, स्नैप के अंदर 95 परसेंटाइल, स्नैप के अंदर 95 परसेंटाइल, ठीक है। उसको SCM HRD से कॉल आ गया, फिर उसको SIBM बैंगलोर से आ गया, उसको SCM HRD BA से कॉल आ गया, उसको SIIB से कॉल आ गया,
ये चारों अच्छे कॉलेज है। 70 परसेंटाइल इन कैट भी उसका आया, फिर भी ही इज गोइंग टू गेट गुड करियर, ही इज गोइंग टू हैव गुड करियर। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेंथ को समझा कि भाई कैट अगर मुझसे नहीं हो रहा है, अभी से ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन स्नैप एग्जाम थोड़ा अलग है। उसका जो पेपर पैटर्न है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, काफी लोग इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कैट में इतना परफॉर्म नहीं करते। तो ये चीज ही अगर आपको अभी से पता चल जाती है तो आपको पता रहेगा कि मुझे स्नैप पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। एंड आप जब कैट, स्नैप, सीईटी, सीमैट ये सारे एग्जाम लिखोगे, आपको अंदाजा आ जाएगा कि भाई आपके लिए कौन सा एग्जाम है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो या जनक इज आस्किंग हाउ इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल इन द सेंस क्या? सो जनक कैसा होता है, सी इट इज समथिंग लाइक दिस। से फॉर एग्जांपल हम जनक का एग्जांपल ले लेते हैं। जनक को मैंने कहा कि देयर आर दिस 50 kg weights, there is a 50 kg weights, how many times can you lift? तो जनक ने ये 50 kg का वेट उठाया, एक बार बड़ी मुश्किल से उसका उठा उससे, बट उसकी जगह पे मैंने उसको 20-20 kg के वेट्स दे दिए, उसने फटाफट इसको 10 बार उठा दिया। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ गाय से सुरेश, सुरेश को मैंने अगर ये 50 kg का वेट उठाने को दिया, उसने 3-4 बार इसको उठा दिया। मैंने जब उसको 20 kg वाला वेट दिया तो वो 6-7 बार उठा पाया। डू यू अंडरस्टैंड? एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्ट्रेंथ। सो कैट एंड स्नैप एग्जाम आर लाइक दिस। कैट एग्जाम इज वेरी डिटेल, यू नीड टू लिफ्ट 50 kg वेट्स, लेकिन आपको थोड़े से ही उठाने हैं। स्नैप एग्जाम इज स्लाइटली लाइटर बट यू नीड टू लिफ्ट मोर वेट्स। Are you getting this point, guys, through an analogy that I have given? Yeah, great. So guys, इसीलिए आपको एक एक मॉक टेस्ट लिखना चाहिए जो भी 5 एग्जाम आपने सोचे। It can be CAT, it can be SNAP. Then if you are keeping ZAT also in the list, keep it. फिर आपने सपोज CMAT रख लिया लिस्ट में और आपने NMAT रख लिया, तो ये हर एक के एग्जाम लिखो, पेपर लिखो। सपोज आपने टिस भी रखा है तो टिस भी लिखो। तो जैसे ही आप टिस लिखोगे आपको समझ में आएगा इसमें 40 क्वेश्चन तो जीके के आते हैं, 40 क्वेश्चन जीके के आते हैं। और अगर आपका जीके बहुत वीक है तो या तो आप जीके इंप्रूव करो या फिर ये एग्जाम को इतना फोकस ही मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो जीके में अच्छे होते हैं ना वही टिस का कट ऑफ क्लियर करते हैं। क्योंकि आप मैथ्स में कितने भी अच्छे हो जाओ, आप एक गिवन टाइम में आप एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जीके अगर आपका अच्छा है तो 10 मिनट में आप 40 में से 35 सही कर लोगे, अगर बुरा है तो वही 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन सही करोगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये देखो कितना फर्क पड़ा। So you need to understand what are your key strengths and accordingly you need to target these exams. Are we all clear, everyone? Right, okay. So one mock test, understand the pattern and identify the scoring areas. जैसे जीके का मैंने एग्जांपल दिया, right? हाँ, so एक second. Now there are a few questions that are coming up. So Rohit Singh is for 90 plus percentile. How many marks are required? So Rohit, as per this year's scores, 90 plus percentile, इतने सारे एग्जाम्स थे तो मैं भूल गया हूँ, बट आई थिंक क्लोज टू 56-58 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल गया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 56-58% मार्क्स पे 90 परसेंटाइल गया हुआ है, राइट? आई हैव टू वंस अगेन चेक। ठीक है सर, आई एम इन सेकंड ईयर, कैन आई अपीयर फॉर कैट 2021? सो सेकंड ईयर ऑफ व्हाट जस्मीन? इफ यू आर इन सेकंड ईयर ऑफ बीकॉम, यस, CAT 2021 will happen in the November, so you will be in third year. So when you are in final year, you can take CAT. So November में आप decide करो आप कौन सी year में होगे. If you are in pre-final year, then you can't take CAT in November. ठीक है? Right. So guys, देखो मैं जो मेरे प्लस स्टूडेंट्स होते हैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप सारे टॉपिक्स लिख लो और फिर जो टॉपिक आप करते गए उसको टिक करते जाओ। सो दिस इज हाउ आई हेल्प, दिस इज हाउ आई रिकमेंड टू माय प्लस स्टूडेंट्स। ओके, सो आप भी कुछ इस तरीके से एक डैशबोर्ड बना सकते हो अपना, और उसमें जो भी टॉपिक हो गए उसको टिक करते जाओ, राइट? तो अलग अलग एरियाज है, क्या टॉपिक से, ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ओके, बट जस्ट आई एम शोइंग यू एन एग्जाम्पल. So definitely, once again guys, you can go for plus using my code CHAR10 and go for 2 years plus subscription even if you are targeting CAT 2021. But याद रखना आपकी प्रिपरेशन चलेगी अप्रैल 2022 तक, अप्रैल 2022 तक चलेगी।
ठीक है। और अगर आप देखोगे 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस देखोगे बहुत ही कम है, इट इज 3500 का डिफरेंस। उसमें भी आप कोड अप्लाई करोगे तो 10% डिफरेंस और कम हो जाएगा। सो इफेक्टिव डिफरेंस आता है 3150, और उसके लिए यू डोंट वांट टू मिस आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स एंड बैचेस एंड ऑल। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दैट, डेफिनेटली यू गो फॉर दिस, right guys. Yeah, I mean, I provide personal guidance to my plus students. Okay, I don't commit to others. You can be part of the group. I'll address the queries as I address for other students also, as simple as that. Okay, so because Unacademy provides the mentor in the iconic subscription, बट व्हाट आई डू इज एडिशनली, मतलब स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस चाहिए रहता है, तो जो मेरे प्लस स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको मैं ये एडिशनल प्लानिंग में हेल्प करता हूँ, राइट। ओके, एनीवेज, सो पे योर अटेंशन हियर। व्हाट आर द टॉपिक्स? आप सिलेबस मांग रहे थे गाइस, हियर इज द सिलेबस फॉर कॉन्ट सेक्शन। नंबर लाइन, नंबर सिस्टम पूरा करना पड़ेगा, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे। कुछ और टॉपिक्स माइनर मैंने इग्नोर किए हैं, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। एरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज एरिथमेटिक का है, याद रखना ये एरिथमेटिक। फिर एल्जीब्रा, सो नंबर 1 एरिथमेटिक, फिर नंबर 2 एल्जीब्रा, नंबर 3 ज्योमेट्री, नंबर 4 मॉडर्न मैथ्स, एंड नंबर 5 नंबर सिस्टम। बट नंबर सिस्टम आता है तभी ये सब आएगा, नंबर सिस्टम के बिना ये कुछ बाकी में काम ही नहीं चलेगा। सो एक्चुअली सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। अभी क्लियर एवरीवन? सेम वे अगर एलआरडीआई की बात करें, एलआरडीआई का कोई सिलेबस तो है नहीं, तो अरेंजमेंट के पजल्स आते हैं, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन आता है, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट आता है, रीजनिंग बेस्ड डीआई आता है, एंड कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स आते हैं। तो ये आप एक ब्रॉड सिलेबस कह सकते हो। एंड वर्बल में क्या आता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, ऑड वन आउट एक रह गया है, ऑड वन आउट, समरी, एंड मिसफिट। मिसफिट इज आई थिंक ऑड वन आउट। Okay, so these are the topics of verbal. So I'm sure all of you have understood this. Now the question comes कि सर कौन सा बुक रिफर करें? Let me tell you अरुण शर्मा, निशित सिन्हा से अरुण शर्मा is a better book. Moreover, of course, I have respect for my fellow colleague faculty because he also teaches on Unacademy Plus platform. तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप उनके बैचेस भी अटेंड कर सकते हो। कैन यू बिलीव, जिसका आप बुक यूज कर रहे हो उनके बैचेस भी है, ठीक है ना गाइस? तो आप उनके बैचेस भी अटेंड कर सकते हो डेफिनेटली। तो अरुण शर्मा बुक में काफी वैरायटी है, एक तो ये हो गया। उसके अलावा कोई भी टॉप जो इंस्टीट्यूट्स है उनके मटेरियल अगर आपको मिलते हैं तो वो भी अच्छे हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो। आई कांट नेम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, बट आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स। आप उनमें से कोई एक का ले लो और उससे भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये दोनों में काफी अलग वैरायटी देखने को मिलेगी। So that will cover your 100%. There is no doubt about that. As far as mock is concerned, I can tell you कि Unacademy mocks are actually better than the top institute mocks. क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट without taking their names, I can tell you बहुत ही टफ मॉक बना देते हैं, तो मतलब समझ भी नहीं आता इतने टफ मॉक की जरूरत क्या है, कैट पेपर तो उतना टफ है नहीं। तो Unacademy के मॉक काफी बैलेंस्ड रहते हैं, तो उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। आप अभी इसके पीडीएफ मैंने ग्रुप पे रखे हुए हैं, आप खुद से भी परचेज कर सकते हो, फिजिकल कॉपीज भी परचेज कर सकते हो। सो या अंशु इज आस्किंग, डूइंग देयर बुकलेट्स विल बी इनफ फॉर प्रैक्टिस? बुकलेट्स एंड क्लासशीट्स, बुकलेट्स एंड क्लासशीट, जो बुकलेट्स आते हैं ना वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, क्लासशीट्स याद रखो ये। तो क्लासशीट्स विद सोल्यूशन कहीं से ले लो, ठीक है। हाउ अबाउट क्वांटम कैट बाय सर्वेश? आई विल नॉट सजेस्ट। अगर आप अरुण शर्मा लेते हो तो ना सर्वेश कुमार ना निशित सिन्हा, कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर से कहा कृष्णा, आप वही सवाल पूछ रहे हो, मैंने क्या कहा? अरुण शर्मा के साथ में कोई भी एक टॉप इंस्टीट्यूट का मटेरियल, ओके, दोनों लिखा है कि नहीं? राइट, नो, एब्सोल्युटली नॉट गौरव, एब्सोल्युटली नॉट, अनलेस you are in one of those college, you are pursuing your graduation from one of the college like Symbiosis। जैसे मैं पुणे में हूँ और Symbiosis और कुछ कॉलेज मैंने देखे, उनका ग्रेजुएशन के का करिकुलम ही इतना ज्यादा हेक्टिक रहता है स्टूडेंट्स का कि they actually don't find any time to prepare for CAT। If you are in that position, if you are in final year and if you have lots of workload or second year and you are going to get lots of workload, तो फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो it's better to take, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो, जितना होता है उतना करो, ठीक है। मे बी यू कैन गो फॉर 2 years Unacademy सब्सक्रिप्शन और इस बार में जितना होता है थोड़ा सा कर लो, और फिर जैसे ही आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया
आप फुल फ्लैच और फोकस कर सकते हो. सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड योर सिचुएशन. हाँ, अगर आपको फुल टाइम मिलता है, आप टाइम पास कर रहे हो और वो नहीं कर पा रहे हो, तो गाइज फिर वो आपका वो नेचर चेंज नहीं होने वाला है. आप नेक्स्ट ईयर भी टाइम पास ही करोगे जब फुल्ली फ्री होगे तब. तो अगर आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, सफिशिएंट टाइम कितना हो गया गाइज, आपको दिन में अराउंड 6 घंटे निकालने होंगे, 6 आवर्स अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज असाइनमेंट एंड सबमिशन. और वो सारा हटाने के बाद आपके पास 6 घंटे होने चाहिए, जिसमें से आप 3 से 4 घंटे सेशंस अटेंड करोगे. अब मेरे सेशन अटेंड कर रहे हो तो वो अटेंड करो, और बाकी के 2-3 घंटे आप न्यूज़पेपर रीडिंग एंड प्रैक्टिस में डालते हो. प्रैक्टिस एंड न्यूज़पेपर रीडिंग. इज इट क्लियर गाइस? इससे ज्यादा आप जितना भी दे सकते हो उतना फायदा होगा. So, yeah, Dashrath is saying, sir, I am pursuing BSc first year and preparing for CAT 2022. So, what will be my approach? Should I focus on graduation or should I start preparation for CAT 2022? Dashrath, for you, you can start by taking things easily. ठीक है, थोड़ा सा एकदम ज्यादा फुल एक्सेलेरेटर आपको दबाने की जरूरत नहीं है. गो लिटिल इजी ऑन कैट प्रिपरेशन. डू नॉट लूज द फोकस फ्रॉम योर ग्रेजुएशन स्टडीज. क्योंकि आप IIM कोई भी टॉप नॉच बी स्कूल के इंटरव्यू में जाओ, दे विल आस्क यू सम बेसिक्स अबाउट योर डोमेन. ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग में हो तो पूछ लिया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो तो पूछ लिया AC/DC क्या होता है या कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट होता है. अगर आप सपोज बीकॉम में हो तो पूछ लिया अकाउंटिंग में ये क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट. सम स्टूडेंट्स हैज बीकॉम लास्ट ईयर रांची. व्यू क्वेश्चन. So there are few students, Tanushri Ghai and Nancy Kumari. So yeah, Tanushri, I'll address your query. Just give me 2 minutes. ठीक है? Yeah. Fine. So guys, I'm sure you have understood. Mock test plan आपका क्या होना चाहिए? तो prepare list of, ये तो आपने कर लिया. Understand the paper pattern and identify the scoring areas. ये तो हमने कर लिया, right? अच्छा, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करना बहुत जरूरी है गाइस. शुरू कर देना. ये pursue your hobbies. ये हॉबी को परस्यू करना मत छोड़ना गाइस, बिकॉज दैट वुड हेल्प यू इन इंटरव्यू. 2 पर्पस है. इंटरव्यू में तो हेल्प करेगा ही करेगा, उसके साथ में इट विल कीप यू फ्रेश. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू लाइक प्लेइंग गिटार और इफ यू लाइक प्लेइंग बैडमिंटन और क्रिकेट और व्हाटएवर यू लाइक, कीप डूइंग दैट. इंटरव्यू में भी तो मदद मिलेगी एंड इट विल कीप यू फ्रेश. ठीक है. प्लान फॉर ग्रेजुएशन स्टडीज. अब ये क्या होता है? प्लान फॉर ग्रेजुएशन स्टडीज क्या होता है? इस ध्यान से सुनो, फिर मैं आपको पूरा फेब से नवंबर का प्लान बता देता हूँ. देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एक बीकॉम के स्टूडेंट का, सिमिलरली यू कैन फैक्टर इट आउट फॉर योरसेल्फ. तो बीकॉम वालों का नॉर्मली मार्च अप्रैल में एग्जाम आता है और इंजीनियर्स का नॉर्मली मई में एग्जाम आता है. ओके, सो ये जब पीरियड आता है तो मैंने देखा है एग्जाम तो आपका मुश्किल से 8 से 10 दिन का रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके 15 दिन पहले से पढ़ना शुरू करते हैं, तो कंप्लीटली कैट से कट ऑफ हो गए और इसके 5 दिन बाद चिल मारते हैं. चिल. तो टोटल गैप कितना हो गया? 10 + 15 + 5, 1 मंथ का गैप हो गया. गाइस ट्रस्ट मी, कैट एग्जाम में अगर 1 मंथ का गैप आ गया मतलब आप 0 पे आ जाओगे. इट इज सिमिलर टू बॉडी बिल्डिंग. जैसे अगर आपको फिटनेस गेन करना है, इफ यू वांट टू बिल्ड योर मसल्स, आपने 4-5 महीने अच्छे से मतलब मसल्स गेन किए, बहुत अच्छा डाइट फॉलो किया, एंड 1 मंथ आपने कुछ फॉलो नहीं किया, यू विल लूज एवरीथिंग. यू विल कम टू स्क्वायर 1. सो वी रियली डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन. सो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अभी से ही अपने ग्रेजुएशन के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी थोड़ा टाइम देना शुरू कर दो. एवरी डे 30 मिनट्स फॉर वन सब्जेक्ट. पिक वन सब्जेक्ट. जैसे वीक में 6 दिन है, आप 30 मिनट्स खाली एक सब्जेक्ट को दे दो. मंडे से सैटरडे हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट, 30 मिनट्स. इस 4 वीक के अंदर आपका काफी सारा पोर्शन कवर हो जाएगा. और ये 30 मिनट्स कुछ भी लगेगा क्या आपको? नहीं लगेगा. बट दैट विल मेक श्योर कि जब आपका एग्जाम आता है ना, यू रियली डोंट नीड टू कट ऑफ योरसेल्फ फॉर 15 डेज. इनफैक्ट एग्जाम के दिन पे भी आप थोड़ा सा कैट का प्रैक्टिस कर सकते हो, इतना टाइम मिलेगा आपको. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डू यू ऑल एग्री विद दिस? अभी से अगर मैंने 30 मिनट्स करना शुरू कर दिया ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन, जब मुझे पता ही है एग्जाम तो मेरा आने ही वाला है, तो मैं क्यों वो आग लगने की वेट करूं? नो. Siddharth, can teaching primary students be considered as a hobby? Cause I like teaching and I have been teaching students till 10th class for more than 2 years. इसमें पता है क्या होगा? You will invite trouble for yourself.
they'll say कि अच्छा सो यू आर अ टीचर, फाइन, कैन यू टेल मी, और फिर 7th स्टैंडर्ड का तुम्हें एक बहुत ही बेसिक एक फॉर्मूला होगा उसका एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, एंड देन यू डोंट नो दैट, चांसेस आर वेरी हाई दे विल गो इन सच अ डिटेल कि शायद आपको पता नहीं होगा, एंड यू विल दे विल फील के नो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर जॉब, राइट? सो ऐसा मत बताओ सिद्धार्थ, आई विल नॉट रेकमेंड unless you are actually very good at maths or whatever subject you are teaching and you have very thorough knowledge of that subject, then go for that, then you can go for that. क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना उसमें मतलब आर या पार होगा, या तो बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा या तो नेगेटिव होगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस. इज दैट क्लियर सिद्धार्थ? ठीक है ना? जैसे आपको पूछ लिया कि एक चीज बताओ कि 4 डिवाइड बाई 0 क्यों हम फाइंड नहीं कर सकते, आपको ये 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझाना है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को समझाना है. हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट? अब अगर आपने इसको बहुत ही इजी वे में जो ये बच्चे को समझ में आ जाए वैसे समझा दिया तो मे भी अच्छा हो गया. आप नहीं समझा पाए, सो दैट मे क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन आल्सो. So it's completely up to you. So I'm sure guys you all have understood this points, right? So I have given you the complete idea about what should you do. Now let's talk about the complete plan. ठीक है, हम complete plan एक बार देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए हमारा फेब से लेके हमारा नवंबर तक का प्लान क्या होना चाहिए. बहुत ही सिंपल प्लान है गाइस. अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो आपके लिए मैं कुछ ऐसा प्लान सजेस्ट करूंगा गाइस. कंप्लीट फेब में आप बेसिक्स ऑफ मैथ्स एक तो करो, बेसिक्स ऑफ मैथ्स प्लस 1 मॉक एटलीस्ट, अगर 2 लिख सको तो अच्छा ही है, प्लस स्टार्ट विथ क्वांट एंड एलआरडीआई. क्वांट एंड एलआरडीआई शुरू कर दो. मतलब आप क्वांट एलआरडीआई की भी एक एक सेशन अटेंड कर रहे हो, मॉक भी लिख रहे हो, एक मॉक लिखना है आपको, एंड बेसिक्स ऑफ मैथ्स आपको कंप्लीट करना है. तो जैसे ऐसा समझ लो बाय एंड ऑफ फेब आपने क्वांट का एक टॉपिक कर लिया. दिस कैन बी नंबर्स और ज्योमेट्री और कुछ भी हो सकता है. एलआरडीआई के कम से कम आपने 30-35 क्वेश्चंस से सेट्स कर लिए हैं. तो अगर आप मेरे हर रोज के सेशन अटेंड करते हो तो भी उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. ठीक है, फिर मार्च से लेके आई विल सजेस्ट मार्च से लेके जून तक. ना मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने में आपको टारगेट करना है कि यू कंप्लीट द सिलेबस. You complete the syllabus of all the subjects and it is fairly doable. मैंने जैसे कौन में बताया 5 मॉड्यूल है, हर एक मॉड्यूल करने के लिए 20 दिन लगेगा, ऐसा समझ लो. हर एक मॉड्यूल को करने के लिए 20 से 25 दिन लगेगा, तो आप कर ही सकते हो इतना आराम से, राइट? सो कंप्लीट सिलेबस आपको क्वांट का करना है. क्वांट एलआरडीआई के काफी सारे इसमें सिलेबस जैसा नहीं है, इसमें तो प्रैक्टिस ही करनी है. वीएआरसी भी आपने कंप्लीट कर लिया एक बार का. ठीक है, मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस अलोंग विद दैट, सफिशिएंट प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो. फिर अच्छा इसके साथ में इन दिस पीरियड, दिस इज अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, तो यू शुड हैव रिटन एटलीस्ट 8 मॉक्स. कम से कम 8 मॉक लिखे हुए होने चाहिए, हर महीने 2. ठीक है, एक कैट का, एक स्नैप का, फिर नेक्स्ट मंथ वापस एक कैट का, एक एनमैट का, एक कैट का, एक सीईटी का. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो. और फिर जुलाई से लेके आप अक्टूबर तक एडवांस लेवल प्रिपरेशन करोगे. एडवांस लेवल प्रिपरेशन. हाँ, सो विशाल इंजीनियर्स के लिए ये सिर्फ बेसिक्स ऑफ मैथ्स हट जाएगा, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम रहेगा. दैट्स इट. बेसिक्स ऑफ मैथ्स है ना, वो हटा दो. दैट्स इट विशाल. इजंट दैट क्लियर? राइट. सो जुलाई टू अक्टूबर में आपको एडवांस लेवल प्रिपरेशन करना है एंड आपको कम से कम हर महीने 4 मॉक टेस्ट, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब टोटल 16 मॉक्स लिखने हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? फिर से एक बार देख लेते हैं. फेब का मैंने दिया, मार्च टू जून दिया एंड जुलाई टू अक्टूबर दिया. फिर नवंबर में आप क्या करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन नवंबर? नवंबर विल बी जस्ट फॉर रिवीजन, जस्ट अ क्विक रिवीजन एंड मॉक्स. दैट्स इट, मॉक्स. अच्छा एक और चीज बता देता हूं, ये जो 16 मॉक्स हम लिख रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि जुलाई टू अक्टूबर 16 मॉक्स जो मैंने कहा, इट शुड नॉट बी ओनली ऑफ कैट. 16 में से ऐसा समझ लो 10 to 12 ऑफ कैट एंड द रिमेनिंग 4 to 6 मॉक्स ऑफ ओ मैथ्स. तो आपको बाकी के एग्जाम का भी बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए कि भाई स्नैप कैसा है, सीमैट कैसा है, एनमैट कैसा है, जैट कैसा है, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए.
So guys, this is the complete plan. This should be your strategy to crack CAT. Okay. अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है. अभी अगर आपको इसको ट्रैक पे रखना है, डेफिनेटली गाइस यू कैन गो फॉर द 2 years सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी. आप चाहो तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी जा सकते हो. इफ स्पेंडिंग मनी इज नॉट अ चैलेंज फॉर यू गाइस, गो फॉर आइकनिक, पर्टिकुलरली इफ यू आर टारगेटिंग 90+. तो उसमें मेरे गाइडेंस के अलावा आपको और मेंटर का पर्सनल कोच मिलेगा who has recently done his MBA or who is pursuing the MBA from one of the top B school, और वो आपको बताएगा कि आपका वीक एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, कौन से एग्जाम पे फोकस करना चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड SHART10 whenever you go for that. मेरा बैच अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो आप अगर कल ही जाते हो प्लस के लिए, फिर आप मुझे पिंग कर सकते हो Ronak_live पे. आप जाने से पहले भी मुझे पिंग कर सकते हो कि सर मैं जाने का सोच रहा हूँ, कुछ भी आपको कंसर्न है आप मेरे साथ डिस्कस करो. और फिर आपने ले लिया, SHART10 डाला मत भूलना. ओके, फिर आप मुझे पिंग करो, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा. जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कैसे वो हेल्प करते हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? सो हाँ, 9:15 को क्लास है आपका. ठीक है, चलो. तो प्लस स्टूडेंट्स का 9:15 को क्लास है. सो उसमें मैं प्रिपरेशन आपको आगे कराऊंगा. राइट. So guys, here are the plans. Go for 12 months or 24 months. This will be helpful. Or you can also go for Iconic. Iconic की cost थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, but जैसा मैंने कहा कि उसके अपने advantages हैं, right? Don't miss the discount part. Do it quickly. And for any other course also, you can use my code. So that's it, guys. Keep learning and let's crack it. Hope you would have enjoyed this session. Do not forget to press the like button after the session so that others get the suggestion about the session, and please keep sharing it with your friends also. Thank you guys. Bye bye. Take care.